So many of our dreams at first seem impossible, then seem improbable, and then, when we summon the will, they soon seem inevitable. Christopher Reeve. 30th December 2010. Foundation ceremony of Gujarat Solar Park. "12 months later, 28th January 2012. 214 megawatts of solar power commissioned at world's first multi-developer, multi-facility, multi-technology, multi-beneficiary solar park at Charanka village, District Patan, Gujarat. 19th April 2012. Gujarat dedicates 500 megawatt power generation capacity to the nation, as Asia's largest solar park is formally inaugurated in Gujarat. We are doing this mainly to contribute in the war against global warming and climate change. The story of Gujarat Solar Park is a historic feat in itself. Visualized, planned, and swiftly implemented in record time of under a year. The most notable aspects were its execution and the political willingness to go the extra mile. A plethora of complexities had to be resolved before the park could see the light of day. Acquiring land, developing infrastructure, and handing over plots to individual developers had to be done simultaneously, while sensitively handling the issue of encroachment of land pockets by locals. Approach and internal roads had to be built. Reservoirs and systems for storing, treating and distributing water had to be created. The project site fronted the desert of Kutch, and harsh weather conditions proved to be major constraints, with frequent flooding and the remoteness of the village adding to construction costs. Total quality management played a crucial part in achieving the success of the project, with a regularly monitored, web-based system specially developed to ensure the timely accessibility of both data and information. While 1,500 laborers diligently worked round the clock, developers were taken into confidence through periodic meetings where they were updated regarding the project's development and revisions at every stage. A team of experienced officials were available on-site 24/7 to promptly address clearance and approval issues. This helped to eliminate redundancies and reduce the duplication of efforts. Activities were completed within the scheduled time frame, as every member of the project worked steadfastly around bottlenecks and ensured that the project was commissioned within schedule. A win-win project for all segments, the solar park saw many far-reaching consequences. Uniquely integrating environment, infrastructure and social perspectives, the park led to vast areas of government wasteland being put to good use, with gainful employment benefiting larger rural sections and communication networks and irrigation water flowing through villages. This innovative approach will contribute to India's energy requirements and will create jobs and welfare without generating additional greenhouse gas emissions. As a prime example of energy conservation, with rainwater harvesting, carbon emission reduction and groundwater recharge happening on a continual scale, the Gujarat Solar Park at Charanka bears testimony to one truth: that harnessing divine energies is the only way forward. And having the courage to go beyond one step today is the only way to a better tomorrow. Gujarat Solar Park at Charanka, partnering a journey of brilliance. नमस्कार, इन्फ्रा टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के लोकसभा के चुनाव के बारे में। जैसे कि कल 16 मई को सारे नतीजे क्लियर हो चुके हैं और इसमें स्पष्ट बहुमत मिला है, जो कि ऐतिहासिक स्पष्ट बहुमत है भारतीय जनता पार्टी को। इस पर आज हम बात करेंगे प्रोफेसर एजे अय्यर, जो कि एडिटर इन चीफ एंड पब्लिशर है इनर्शिया के एवं प्रेसिडेंट है इनर्शिया फाउंडेशन के। प्रोफेसर अय्यर, आपका स्वागत है। नमस्कार।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक विजय है, जरूर मोदी सरकार की विजय है। अब की बार मोदी सरकार जो था वो इश्यू बिल्कुल अब की बार मोदी सरकार है और हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज है। ऐतिहासिक विजय जो 30 साल के बाद, मतलब तकरीबन 3 डिकेड के बाद इस तरह की विजय हुई है। और मैं इसमें एक कहना चाहता हूं कि इस विजय के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज देखा जाना चाहिए कि हमारे देश में जिस तरह की दलगत राजनीति उत्पन्न हुई थी, तकरीबन पिछले 10 साल में तो बहुत ही दलगत हो गई थी और उसके पहले भी काफी खिचड़ी सरकारें बनी, ऐसी सरकारें बनी जिसका देश का कोई भला नहीं हुआ और देश में केवल 2-3 चीजें बहुत आगे आई। सबसे पहले देश, जब वीपी सिंह के समय में मैं बोलना चाहता हूं कि देश कास्ट के रूप में पूर्ण रूप से बट गया, देश में जातिवाद संपूर्ण रूप से आया। उस समय पूरी की पूरी इस देश का कबाड़ा हुआ और इस देश को गिराया गया। वीपी सिंह की सरकार ने इस देश को इतना पीछे भेजा कि हम सोच नहीं सकते। पहले वो चीज हुई। उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रिपेयर इसमें मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें थोड़ी बहुत रिपेयर हुई। उसको काफी तूल दिया जाता है कि बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे और बेस्ट काम किया। मानते हैं कि वो शुरुआत का एक समय था, परंतु देश की जो पोटेंशियल थी या देश की जो ताकत थी, पूर्ण रूप से हम जो अनलिश कर सकते थे दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए, वो उस समय भी कोई काम नहीं हुआ। और देश का सही समय जो परिवर्तन आया उसको मैं मानता हूं कि वाजपेयी जी की जो सरकार बनी उसमें काफी श्रम हुआ। सबसे पहले वाजपेयी जी 1999 आए, 13 दिन की केवल सरकार बनी, गिराया गया सरकार को। उसके बाद 13 महीने की बनी, फिर गिराया गया उस सरकार को और उसको सरकार को जाना पड़ा। उसके बाद जो समय 4.5 साल का देश को उसके अलावा दिया, मतलब ये टोटल जो समय 99 से लेकर 2004 तक वो भारत का एकदम ट्रांसफॉर्मिंग समय था और मेरे ख्याल से वो एक तरह का गोल्डन पीरियड था। अपने नजरिए से देखेंगे बहुत मुश्किल समय, कोलेशन सरकार बनी जिसमें पूर्ण बहुमत सरकार नहीं थी, कोलेशन थी और उसमें वाजपेयी जी का कंट्रीब्यूशन इस देश में सर्वोपरि रहेगा और अभी भी उस सरकार को बेस्ट सरकार ऑफ सिंस इंडिपेंडेंस, इनफैक्ट वर्ड इंडिपेंडेंस नहीं यूज करना चाहता हूँ, आज़ादी, फ्रीडम यूज करना चाहूँगा। इंडिपेंडेंस एक शब्द मैं लाइक नहीं करता हूँ। देश को जब फ्रीडम मिला 1947 से, तब से लेके उस समय तक वो सरकार सबसे भला और सबसे अच्छी सरकार थी जिसने सबसे पहला स्कीम किया कि देश की अर्थव्यवस्था और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा काम किया और देश का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो वाजपेयी साहब का खुद का प्रोजेक्ट था, उनके मतलब दिल के पास वाला प्रोजेक्ट था, उनके लिए एकदम एक तरह से देश को आत्मसम्मान देने वाला प्रोजेक्ट था। उसने इस देश के अंदर सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन करी, चेंज किया और भारत उन्नतिशील देश के रूप में उभरा और फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमी एक ट्रांजिशनल इकोनॉमी बना, जिसको मैं शब्द ट्रांजिशनल यूज करता हूं, जो आज तक है। और उसको बीच में पूरा उनके जो किया हुआ काम था 5 साल में, वो 10 साल का जो फायदा था वो यूपीए 1 में सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली वाजपेयी जी के किए हुए, उन सरकार के किए हुए कामों के ऊपर वो निर्भर रही और वो करती रही। और ये सारा खुलासा यूपीए 2 में पता चला कि कितना कबाड़ा किया इस सरकार ने देश का, क्योंकि काम कुछ नहीं किया, केवल करप्शन बढ़ा और देश के खिलाफ काम करने का काम हुआ। पैरालिटिक गवर्नमेंट थी। और मैं ये 10 साल जो मनमोहन सिंह के हैं, चाहे लोग अभी मनमोहन सिंह साहब को अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे, भले ही वो खुद अच्छे थे या नहीं थे, वो एक मूल्यांकन कोई दूसरा करेगा, लेकिन इस देश का भट्टा बैठाने में ये 10 साल काम आए। वाजपेयी जी के काम को रिवर्स करने का पूरा काम हुआ। परंतु मैं आज एक अच्छी खुशी से बोलना चाहता हूं कि वाजपेयी जी का काम रिवर्स नहीं हो सकता। उनका काम इतना तगड़ा हुआ कि आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इस देश में, वो वाजपेयी जी की सरकार का किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मनमोहन सिंह की सरकार का किया हुआ नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार में न सड़कें बनी न कुछ बना। और इसमें हमारे काफी दोस्त, इंक्लूडिंग कुछ मीडिया के भी दोस्त, कुछ बाकी भी दोस्त, ये जो मोदी सरकार की जो गुजरात मॉडल है उसके खिलाफ खड़े रहे। और ये हम इनर्शिया, में आज बड़े गर्व से बोलना चाहता हूं, इनर्शिया एकमात्र मीडियम था जो इसके ऊपर खड़ा रहा। 6 साल हमने आई एज ए जूरी चेयरमैन, मैंने उस जूरी के चेयरमैन और अध्यक्ष के रूप में इसको 6 साल गुजरात को अवार्ड दिया मैंने। और ये 6 साल हमारे जो जूरी की पैनल के बाकी भी मेंबर थे, इन्होंने भी इसको मूल्यांकन किया, सब बुद्धिजीवी थे और इन्होंने मूल्यांकन करके इस बात को संपूर्ण रूप से देश के सामने रखा कि इनर्शिया अवार्ड्स में 6 साल लगातार गुजरात सरकार को
भारत के बेस्ट मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सलेंट स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट इन एनर्जी एंड पावर, बिजली और ऊर्जा के संबंध में सबसे बढ़िया राज्य घोषित किया। और हम सबको पता है कि भारत देश का सबसे पहला राज्य जो ऊर्जा संपूर्ण और इलेक्ट्रिसिटी संपूर्ण, दैट मीन पावर सरप्लस हुआ, वो गुजरात ही निकला। ये मैं अब कह नहीं रहा हूं, ये खुद हमारे मनमोहन सिंह के सरकार के आंकड़े मान गए। और उसमें सबसे बढ़िया जो यूटिलिटीज है, गेटको, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी, इनको हमने अवार्ड दिया। उसके अलावा डीजीवीसीएल दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड को अवार्ड दिया। और बाकी भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी सबसे बढ़िया रिफॉर्म प्रोग्राम बिजली के क्षेत्र में उन्होंने चलाया। और केवल बिजली नहीं, पानी है, पानी के क्षेत्र में रिवर नेटवर्किंग जो वाजपेयी जी का सेकंड प्रोजेक्ट था, वो एक ही राज्य ने इसको इम्प्लीमेंट किया, वो है गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उस समय गुजरात की सरकार। तो यही जो गुजरात मॉडल है, जिसको सभी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इसके ऊपर देश का संपूर्ण बहुमत मिला है मोदी जी को कि जो आपने गुजरात के साथ भला किया वो हमें भी वही चाहिए, पूरा देश। इसलिए इनको ऐतिहासिक मैंडेट या ऐतिहासिक इनको जो मिला है, क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी, ये पूरे देश ने उसको बड़े जोर से ठप्पा मारा है। सभी राज्यों ने मारा है। कुछ राज्यों ने तो क्लीन स्वीप दिए, जैसे आप 26-0 गुजरात में एक भी सीट ऑपोजिशन को नहीं मिली, 25-0 राजस्थान में एक भी सीट ऑपोजिशन को नहीं मिली, 7-0 दिल्ली में एक भी सीट। केजरीवाल जी की जो हवा है वो चली उनके हिसाब से, लेकिन उनके एक तरह से पता नहीं किसकी हवा निकली, वो सोचना चाहिए, केजरीवाल जी की निकली। और जिस तरह का कैंपेन चलाया गया वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर थी, जो इस देश में मोदी जी ने किया एज एन इंडिविजुअल, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें सक्सेसफुल हुई, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुई, एमपी में हुई, और जहां जहां हुई इनकी सरकारें सक्सेसफुल, वही मॉडल लोगों को चाहिए था। गुजरात इसमें सर्वोपरि रहा, ये हम बिल्कुल दो राय नहीं रखेंगे। गुजरात was the leader and Gujarat is the leader. Gujarat will also be the leader in the future. But एक मॉडल जो देश को एक रास्ता दिखाया गया कि इस प्रकार से हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, धर्म, जाति और किसी और भेदभाव से ऊपर उठकर इस देश का भला किया जा सकता है, वही मॉडल मोदी जी को डेवलपमेंट का आगे लेके जाना है कि विश्व शक्ति बने देश। इस रास्ते जाना है मोदी सरकार को, और यही उनको मैंडेट है भारतवासियों का। मैं अपने भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का मैंडेट दिया, इस तरह का स्पष्ट बहुमत दिया, जिसमें कोई भी मतलब अब कोई खेल नहीं हो सकता, अब कोई पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि नेता भी बड़ा तगड़ा दिया है। और जो पॉलिसी पैरालिसिस के जो थोड़ी भी संभावना थी, 1% भी पैर खींचने की संभावना थी, वो भी खत्म हो गई है। ये जो गठबंधन एनडीए का होगा, ये बड़ा जबरदस्त गठबंधन होगा, और ये गठबंधन विथ मेजॉरिटी गवर्नमेंट और गवर्नेंस आने का पूरा होप। हमारे देश की जो क्या बोलते हैं आपकी अपनी इच्छाएं हैं, स्व इच्छाएं हैं कि हम विश्व के सभी देशों के कगार के अंदर सबसे सर्वोपरि खड़े रहें, वो ऐसे कगार पे खड़े हैं हम कि हमें धन्यवाद देना चाहिए। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अपने लोगों को हर बार कहता हूँ, और सबको मैंने कहा है कि दिस इज अ कंट्री विच इज नॉट अ बिकॉज ऑफ कंट्री, ये इन स्पाइट ऑफ नेशन है। ये इन स्पाइट ऑफ हुआ, लेकिन अब इन स्पाइट ऑफ भी होगा, बिकॉज ऑफ भी होगा, ये भरोसा दिलाया, एक लीडरशिप दी है देश को। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो इस डेवलपमेंट में आपकी क्या राय है? देखिए, क्या है कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना एक बहुत ही बड़ा इशू है। अगर आप देखेंगे कि आज तक जिस तरह के प्रधानमंत्री की इलेक्शंस हुई, हमारे देश में डेमोक्रेसी को एक तरह से दबाया गया। डेमोक्रेटिकली अगर इलेक्टेड कोई लीडर होगा, वो आम राय से बोलेंगे पॉपुलर लीडर होना चाहिए। तो एक तरह से हम थोड़ा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि नेहरू जी एक पॉपुलर लीडर थे। परंतु उस समय क्या था, देश की आज़ादी हुई थी, आज़ादी के मूवमेंट से इन्वॉल्व थे, और वो सब बेनिफिट मिला जब नेहरू सरकार आई, और उनकी कोई अपोजिशन नहीं थी इस तरह की सरकार को, कि उस समय यही लोग थे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। गांधी जी सबसे ऊपर थे, उन्होंने कोई सीट नहीं मांगी, और अनफॉर्चुनेटली उनको एक तरह से क्या बोलते हैं एलिमिनेट किया गया। इस देश में बहुत गलत ढंग की राजनीति उसी समय चालू हो गई जब गांधी जी को एलिमिनेट किया गया। लेकिन इसके अंदर गांधी जी का एक बहुत बड़ा व्यू था, वो चाहते नहीं थे कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बने, वो केवल फ्रीडम मूवमेंट से संबंध रखे, ये उनका व्यू था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया। और मैं नेहरू जी के कामकाज के विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने काफी अच्छा किया, लेकिन अगर 80-20 प्रिंसिपल मानेंगे, नेहरू जी ने अच्छा काम किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो ब्लंडर थी वो उनकी पंचशील
और जो चाइना के आगे गए, और उसमें उन्होंने इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका दिलाया। और आज भी विश्व संबंध में चाइना वो एक देश है जो दूसरे देशों के साथ चलने की जगह वो दूसरे देशों के को एक तरह से नुकसान पहुंचा के आगे जाना चाहता है। अभी भी हम जब ये बात कर रहे हैं, इस वक्त वियतनाम के साथ उनकी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है इस वक्त, उस लड़ाई में अब भारत कैसे हैंडल करेगा ये फ्यूचर में देखा जाएगा। तो एक तरह से मैं कहता हूं कि नेहरू जी का सबसे बड़ा गलती चाइना, और दूसरी चीज है बहुत सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान। ये सॉफ्टनेस ऑन पाकिस्तान नहीं चलेगा। कश्मीर हमारा था, और कश्मीर पूरा पीओके जब ऑक्युपाई हुआ, हमें फिर से 1947 में हम विश्व की शक्तियों के सामने दबे क्यों? तो ये सब सवाल है। फिर भी मैं नेहरू जी को कहना चाहूंगा 80% मार्क उनको भी दूंगा उस समय के लिए। परंतु मेरे नजर में आज भी सबसे बड़े और सबसे अच्छे प्रधानमंत्री नेहरू नहीं थे, वो वाजपेयी जी थे। आज तक के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में, प्रोफेसर अय्यर की लिस्ट में सर्वोपरि अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्हीं का भला आगे करने के लिए आज मोदी आए हैं मेरी नजर में, क्योंकि मैं उनको ही सब संपूर्ण मार्क्स दूंगा। और मेरे लिए सबसे बढ़िया एक लीडर इस देश ने पैदा किया मोदी जी के पहले, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और ये भी याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को पार्लियामेंट में 4 डिकेड रहने के बाद लीडरशिप मिली, बहुत पापड़ बेलने पड़े, और वो भी एक आम आदमी थे, कॉमन मैन थे। एक उनका कोई इस तरह का संबंध नहीं था जिस तरह का कोई रॉयल फैमिली के थे। जैसे नेहरू साहब के तो बहुत अच्छे संबंध थे, और नेहरू साहब की बैकग्राउंड भी बहुत रॉयल टाइप की थी, रॉयल्टी टाइप की, बड़े आसानी से बना। और इसके बाद जितने भी लीडर कांग्रेस के बने, माइनस आई वुड गिव क्रेडिट ओनली टू लाल बहादुर शास्त्री जो गरीब तबके से आए थे, उनको क्रेडिट देना चाहिए। नरसिम्हा राव अपने तरीके से आए थे तो उनको क्रेडिट देंगे। परंतु इन 2 लीडरों को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो बाकी जो लीडरशिप कांग्रेस ने दी, मेरे ख्याल से वो तो पारिवारिक लीडरशिप दी, उसमें कुछ कोई मतलब मेरिट के ऊपर कुछ नहीं आया, कंप्लीटली डीमेरिट। अब लोग बात करते हैं, इनफैक्ट मैं तो इंदिरा गांधी जी की भी बात कहता हूं। इंदिरा गांधी जी की अगर बात करी जाए, बांग्लादेश का कितनी बड़ी बेवकूफी है कि जीत गई थी और सब कुछ हुआ था, 90,000 सोल्जर हमने पाकिस्तान को वापस क्यों दिए? हमें चाहिए था ये 90,000 सोल्जर को रखते और पाकिस्तान को ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचाते कि आप ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो आप इंडिया के लिए रखिए। ये ना करके हमने उनको उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने दिया और ये सब वापरने दिया, तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। ये नाइवाइट है उनकी, एक तरह की बेवकूफी है। और दूसरी चीज है, बांग्लादेश हमारे लिए मुसीबत बन गया कि वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स आते चले गए। तो ये ना करके हमें चाहिए था कि हम बांग्लादेश की इन्फिल्ट्रेशन को खत्म करते और बांग्लादेश को अपनी फ्रीडम देते, और हमें कोई हक ही नहीं था कि हम इसको अननेसेसरली सेपरेशन की जो बातें हैं वो हम कर लेते, इंडिपेंडेंट हो जाते। लेकिन हम ये भी करते कि हम जो पाकिस्तान बना, जो अंग्रेजों की साजिश से बना उस समय, उसको हम एक तरह से हम सोचते कि ये पाकिस्तान बनने का हक है कि सिंध बलूचिस्तान और इन लोगों के भी हक है। ये सवाल था। सवाल ये नहीं था कि कश्मीर इंडिया का नहीं है। कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग था, रहेगा, हमेशा रहेगा। अरुणाचल रहेगा। चीन को भी हमें टक्कर देनी है। अभी हमें वो पुरानी वाली स्टाइल की डिप्लोमेसी नहीं चलानी है, हमें एक सुपर पावर के ओरिएंटेड डिप्लोमेसी चलानी है। ये जो डिप्लोमेसी के नाम पे जो किस तरह की नपुंसकता जो पैदा हो गई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो भी समाप्त होनी चाहिए। हमारे डिप्लोमेट्स अब अपने काम के लिए करें, अब हमें जरूरत पड़े तो हमें टफ स्टैंड लेना है और मिलिट्री को तैयार रखना है, नहीं तो ये देश वीक रहेगा। और ये सब चैलेंजेस मोदी सरकार के सामने आएंगी। हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहिए, तो उनको बताएं आप हमारे साथ ऊर्जा का संबंध करिए। अपने कोयले आपका पड़ा है 184 बिलियन टन, 185 बिलियन टन कोयला पड़ा हुआ है सिंध में पाकिस्तान के, वो हमें बेचे, उसका फायदा उठाए, ना कि ये टेररिस्ट बेचे। जितने टेररिस्ट हैं, चाहे वो हफीज सईद है, चाहे जो भी है, ये अपने भारत के हाथ में दे और हम इनको ट्रायल लेंगे इंडिया में। पाकिस्तान अगर सीरियसली इंडिया से दोस्ती चाहता है, दाऊद इब्राहिम, हफीज सईद और लखवी, जकीउर रहमान लखवी, ये 3 जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं और कल्पिट हैं, और ये तीनों हमारे हाथ में पहुंचाए, उस दिन पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए। मुंबई में जिस तरह का अटैक किया गया, उसके लिए अभी तक पाकिस्तान वहां है ऐसा देश, ये एक इंडिया की भलाई है कि वो वहां देश पड़ा हुआ है। और हमारे को रोज न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, और ये न्यूक्लियर की धमकी जो दे रहे हैं, समझे कि वो खुद मैप से दुनिया के निकल जाएंगे। ये बहुत ख्याल करें, क्योंकि इंडिया इज अ न्यूक्लियर सुपर पावर ऑल्सो, और नॉट ओनली स्मॉल पावर, इट इज सुपर पावर। और हमें अमेरिका को भी 2 टूक बोलना चाहिए कि जो न्यूक्लियर की बातें कर रहे हैं, इनको दूसरे दिन कड़ा जवाब, और ऐसा जवाब कि इनके देश ही मिट जाए, ऐसा जवाब होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट राज्य बन गया है
देश बन गया है। पाकिस्तान के कारण दुनिया भर में टेररिज्म फैला है, केवल इंडिया में नहीं। अफगानिस्तान में भी वही टेररिज्म कर रहे हैं, इनके जितने टेररिस्ट हैं दुनिया भर में ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान ये अपनी टेररिज्म को प्रमोशन की पॉलिसी बंद नहीं करेगा, उससे कोई लॉन्ग टर्म दोस्ती नहीं हो सकती है। और अब वो जो वाजपेयी साहब ने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने आपको इतना बड़ा मौका दिया कि जब वो गए नवाज शरीफ के साथ, तब मुशर्रफ की इतनी टेमरिटी देखिए कि व्हेन ही केम बैक टू वाघा बॉर्डर, मुशर्रफ डिड नॉट सल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर। दैट डे वी शुड हैव टोल्ड देम टू जस्ट पैक ऑफ एंड गो टू वेयरएवर दे वांट टू। हमें इनसे कोई संबंध तब तक नहीं करने चाहिए जब तक ये देश हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ काम नहीं करे, हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं भेजे, तब तक पाकिस्तान से कोई डिस्कशन, कोई भी प्रोग्रेसिव डिस्कशन नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें हमसे ट्रेड करना है, हमारे तरीके से करना है तो करिए, अगर हमारे नजरिए से नहीं कर रहे हैं तो भला ही आपका कोयला पड़ा रहेगा, आपका सब कुछ पड़ा रहेगा। आप तो अपने घर में कुछ नहीं कर पा रहे, नंगा देश हो गया आपका। जो पाकिस्तान नाम का देश है पूरा नंगा हो गया है। अब तुम्हें इंडिया की जरूरत है तो अपनी भाषा बदलो, अगर हमारी जरूरत है। अगर नहीं है और हमसे फिर से वो करना चाहते हो, इस बार माफ नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी है मेरी। सर, इस वक्त स्पष्ट है कि जो ऐतिहासिक बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन चुनाव के पहले जिस तरीके की जो कैंपेनिंग चली है, कटुता भरी, कि पर्सनल अटैक किया जा रहा है, तो ये संविधान के खिलाफ नहीं था? देखिए क्या है कि इस बार तो सबसे निचले स्तर की राजनीति हुई है। आप शुरू से देखिए क्या हुआ। सबसे पहले तो 2002 का रोज रट्टा लगाया गया, जो गुजरात में जो राइट्स हुए, वो राइट्स हुए, वो हिंदू मुसलमान राइट्स हुए, बराबर है। इस राइट्स के लिए कोई भी एक मुख्यमंत्री क्यों जिम्मेदार हो, सारे जिम्मेदार क्यों नहीं हो, इस पर बहुत बहस हो चुकी है और मैं फिर से वो बहस छेड़ना नहीं चाहता हूं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोदी जी की सरकार 2001 में आई थी, उसको बेरली टाइम मिला था कि वो कुछ करे, और जो जो राइटकारी थे उनके ऊपर सजा तो हो ही रही है, उसमें मोदी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल के और केवल एक चीफ मिनिस्टर के पीछे हाउंड करना, ये एक कांग्रेस की बहुत गंदी साजिश थी। और ये साजिश के खिलाफ आज लोगों ने, भारतीय राष्ट्र और कंप्लीट लोगों ने, भारत के जो नागरिक हैं, इन्होंने एक भरपूर तमाचा मारा है कांग्रेस के मुंह के ऊपर। इस इलेक्शन का मैंडेट देखिए, ये तमाचा है। 2002 रोज बात करी गई, उसके बाद क्या हुआ, इसको मीडिया वालों ने भी, मेरे दोस्तों ने सब चमकाया इतने सालों तक, आज भी सुधरे नहीं है। कुछ लोग दूसरे इंटरनेशनल मीडिया में जाके अभी भी वही बकवास कर रहे हैं, जो बकवास उनको बंद करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की, अब मेरे को भी मजबूरन आज थोड़ी टफ भाषा यूज करनी पड़ रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह के गंदे अपने भारत के खिलाफ बात करना, भारत के बोलते ना आपको, उसकी ज़मीर को अटैक करना और हमारी जो इमेज है, इंटरनेशनल इमेज को, उसको नीचे करना, ये काम करने का काम कांग्रेस और उनके दोस्तों ने किया है और बहुत गंदी तरह से किया है। और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और उसका अब निंदा करने का समय नहीं आया। अब तो इनको जवाब देश ने दे दिया है कि इनको इतनी बुरी ऐतिहासिक डिफीट दी है कि 50 सीट नहीं आ पाए इनके। ये बुरी हालत है, पार्लियामेंट में आके बैठे और आत्ममंथन करें कि क्या गलती करी है। अब ये वहां खत्म नहीं होता। देखिए सब लोगों को, एक एक को देखिए आप। मायावती लास्ट में आई और उनके कास्ट के बारे में बात करी तो उनका सुफड़ा साफ हो गया पूरा। मायावती की जो है ना, बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट नहीं मिला। और मैं यूपी के लोगों को कहना चाहता हूं, कभी भी इन लोगों को ऊपर नहीं लाए, समाप्त कर दें, ये कभी भी आगे नहीं आए, ऐसा कर दें। क्योंकि इस तरह के काम करेंगे, इस तरह से देश को बांटेंगे, इस तरह से कास्ट की बात करेंगे तो इनको ऊपर नहीं। आज तो मोदी खुद बैकवर्ड कास्ट से हैं, क्या उन्होंने कास्ट को इस्तेमाल किया आगे जाने के लिए? मैं तो सबसे पहले बोलता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर, वो अपने कास्ट के ऊपर नहीं आए, लेकिन वो बड़े कैलिबर वाले आदमी थे, जबरदस्त कैलिबर वाले आदमी थे, इसीलिए ऊपर आए। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश में कास्ट का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हाँ, तुमको जिनको रिजर्वेशन देना है, जिन गरीब तबकों को आगे लाना है, लाइए, बाकायदा आगे लाइए, उसके मैं पूर्ण रूप से सहमत करता हूं। मैं वो जरूर होना चाहिए इस देश में, जो नहीं कर सकते उनको। लेकिन इसको ओवरडू करना, और अभी देखिए कमाल हो गया, हमारे शरद पवार जी मराठास को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, मराठास अपर कास्ट को रिजर्वेशन, वहां जाट रिजर्वेशन चल रहा है, जाट अपर कास्ट है। ये क्या रिजर्वेशन है? मतलब रिजर्वेशन की कोई हद होती है? अगर इस तरह से हम कास्ट के ऊपर देश को बांटना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। देश में जॉब्स चाहिए, देश को आगे लेके जाना है। अब कांग्रेस की तो हद होती है 4.5% मुस्लिम रिजर्वेशन। भाई हिंदू भी गरीब है, भाई क्रिश्चियन भी गरीब है, भाई बौद्ध गरीब है, सब गरीब है, तो आप एक ही आदमी को क्यों देना चाहते हो? रिलीजन के ऊपर हमें रिजर्वेशन लाना, ये तो मैं बोलता हूं हमारे यहाँ
ये मैं थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ हमारे इलेक्टोरेट को जो इस पूरे स्कीम को समझ गई और बहुत भयंकर रूप से हराया इन फोर्सेस को। और बीजेपी का जो पोजीशन था कि हम सबके लिए एक साथ डेवलपमेंट करेंगे, जो मोदी जी कॉन्स्टेंटली उसको लीड कर रहे थे, लीडर मोदी थे, बोल रहे हमें हमारे लिए सब समान है। उन्होंने वहां से चालू किया कि हम 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करेंगे, मतलब गुजराती मीन्स वो हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी जो गुजरात में रहने वाला है उसकी बात कर रहे थे वो। और इसी प्रकार से भारतवासी 125 करोड़, इतना बड़ा सेकुलरिज्म का नारा कर दिया जैसे कि बाकी सब सेकुलर नहीं है। भाई आप बीजेपी को कैसे सेकुलर नहीं है बोल रहे हैं? बीजेपी जब कॉन्स्टिट्यूशनली एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, संविधान के अंदर आई है, तो सेक्युलरिज्म तो संविधान में लिखा हुआ है, तो इसको रोज ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सेक्युलर है बीजेपी भी। तो ये खाली कांग्रेस सेक्युलर हो सकती है? कांग्रेस है सिक्युलर, SICKULAR पार्टी। तो उसको सोचना चाहिए ये काम क्यों किया उन्होंने, खाली सेक्युलरिज्म का मुद्दा अपने लिए क्यों रख लिया, बाकी लोग सेक्युलर नहीं, खाली मैं सेक्युलर। ये नहीं चलेगा। ये वाली राजनीति भी पिट गई, बहुत बुरी तरह पिटी। लोगों ने बोला हम ये पुराना घिसा पिटा टेप रिकॉर्ड नहीं सुनना चाहते, और उन्होंने बुरी तरह हराया। और मोदी साहब के खिलाफ जो कितनी गलत गलत बातें करी गई, जैसे उन्होंने बताया कि भाई अगर कोई कुत्ते का पिल्ला भी, अगर जो बच्चा भी, मतलब पिल्ला का मतलब वो जो भाषा है कि कुत्ते का बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आता है तो संवेदना होती है, दुख होता है, और गंभीर रूप से आदमी और औरत जो भी हो वो अंदर हर्ट हो जाता है अगर हमारी गाड़ी के नीचे आ जाए। इस मामले को कहां से कहां पलट दिया गया, बोले हम कुत्ते का बच्चा बोला ये। और आजम खान जी तो बहुत आगे गए, इस आदमी को तो इस देश में फटाफट जेल के अंदर भेजना है विद इन टुमारो 24 आवर्स। आजम खान नाम के 3rd क्लास आदमी जो बदतमीज आदमी है, और उसके ऊपर से जो खुद असभ्य भाषा के इस्तेमाल थ्रू आउट द इलेक्शन किया है, और जो खुद ऐसी मानसिकता का है कि इसको क्रिमिनल रूप से अंदर डालना चाहिए, वो बाहर घूम रहा है। और वो क्या बोलता है, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई, ये बोला गया, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ये जो बोला गया ना, इसी कारण उसको अरेस्ट करके अंदर डालना चाहिए। देखता हूं क्या है। मोदी जी तो बड़े बड़े दिल वाले हैं, शायद नहीं करेंगे, लेकिन आजम खान जैसे बदमाश छटे हुए निकम्मे लोगों को इस देश में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये बात पहली। मुसलमानों को सबसे पहले ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए बहुत बड़े डेंजर है ये। मुस्लिम्स को कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान मीन्स मुसलम ईमान, मतलब जिस आदमी का ईमान बिक नहीं सकता, और ये बेईमान है, ये मुसलमान नहीं है। तो इसलिए इनको बाहर निकालना चाहिए। यूपी में ये तमाचा मिला। अब मेरे अपने मुस्लिम भाइयों को और क्रिश्चियन लोगों को सबको बोलता हूँ कि एक तरह चले। हाँ, अगर कोई हमारे खिलाफ बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, हम सब साथ में आपसे लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो हम कोई भी सरकार आए उसमें सभी धर्मों को एक समान ट्रीटमेंट करने की बात करेंगे, अलग अलग करके ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे। देश एक साथ जाएगा, ओनली वन इंडियन, इंडिया फर्स्ट, यही होना चाहिए हमारा अगले 10 साल के लिए नारा। बांट के नहीं देखे लोगों को तो अच्छा है। ये बांटने की जो राजनीति है समाप्त हो गई है, इसका अध्याय समाप्त हो गया है। तो भाषा की फिर से मैं बात कर रहा हूँ। भाषा मैं जितना बोलूँ उतना कम, बहुत गलत भाषाएं यूज की गई है मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इतनी गंदी और भद्दी भाषा कांग्रेस ने पहले चालू करी, और वही लीडर थे, और उनकी इस राजनीति के लिए उनकी इतनी बड़ी पिटाई हुई है इस इलेक्शन में। और ये समुद्र मंथन करें, अपनी भाषा को सही ढंग से वापरे, नहीं तो हमको भी उसी तरह की भाषा वापर के आज उनका मूल्यांकन करना पड़ रहा है। क्योंकि जो किया वही, जो बोया वही पाओगे। तुमने घृणा बोई, तुम्हारे साथ पूरे देश के लोगों ने घृणा की और तुमको बिठाया, बाहर निकाला। और ये जनादेश है। ये जनादेश तुम्हारे लिए इस बुरी तरह से आया, अगले 10 साल से 15 साल तक आप भूल जाएं पावर में आने के लिए। पहले कांग्रेस को बदलिए, जो गांधी जी की कांग्रेस उसको बनाइए। ये जो इंदिरा की जो कांग्रेस आई है ना नीचे से, उसको जरा खत्म करें। वो कांग्रेस नहीं चल सकती। नेहरू जी की कांग्रेस भी एक्सेप्टेबल है, ये नेहरू की कांग्रेस नहीं थी, इंदिरा की कांग्रेस थी। जो गलत इंदिरा, राजीव गांधी और उन्होंने जो जो गलतियां करी उसके बारे में सोचना चालू करिए। और ये जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक ये कांग्रेस पार्टी वापस पावर में इस देश में नहीं आ सकती है। मेरा ये कहना है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब जब इतना जनाधार मोदी सरकार को मिला है, तो मुख्य मुद्दे जो डेवलपमेंट के होंगे वो मोदी सरकार के सामने क्या होंगे? उनके देखिए, कल बहुत अच्छा स्पीच दिया उन्होंने आफ्टर विक्ट्री, और उन्होंने बिल्कुल वाजपेयी जी के अंदाज में ही एक स्पीच दिया है। कल अहमदाबाद की स्पीच भी देखिए, बड़ौदा की भी देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने बोला है, मैं अब प्रधानमंत्री देश का हूं, मैं बीजेपी का या एनडीए का प्रधानमंत्री नहीं हूं,
जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया वो भी, उनका भी मैं प्रधानमंत्री हूं। जिन्होंने मतलब मतदान भी नहीं दिया किसी को, उनका भी मैं प्रधानमंत्री हूं। जो मेरे खिलाफ बैठे हैं उनका भी मैं प्रधानमंत्री हूं। मतलब हर तरह के तबके के लोग, तो बोले सब मिलके आगे चलते हैं, तो वो एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो ये लोग हैं पिछले, जो जिस तरह की मैं आज बोल रहा हूँ दलगत राजनीति, जिस तरह की गंदी राजनीति जो हमने फॉलो करी, जिसमें केवल गलत बातें करी गई, वो इतनी जल्दी इस चीज को विश्वास करके आज भी जल्दी से आने वाले नहीं है। क्योंकि लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जनता ने देश के मोदी जी को एक मैंडेट दिया। अभी कुछ लोग खड़े होकर बोलेंगे कि उनको केवल 36% 37% वोट मिला है। उनका कहना है कि 63% जो देश की जनता है वो अभी भी बीजेपी और एनडीए को नहीं चाहती थी। तो मैं उनको, मेरे भाइयों को पूछना चाहता हूं, फिर आप इतनी रजिस्ट्रेशन ऑफ इतनी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों अलाउ कर रहे हैं? फिर आप एक 4 या 5 पार्टी सिस्टम पे आइए, इतनी मल्टी पार्टी सिस्टम को अबॉलिश करिए। जो पार्टियां आज अगर आप देखें तो हम सभी, कई पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सी पार्टियां हैं, अब उनको 3-4% के ऊपर वोट नहीं मिला, 4-4% का वोट मिला हुआ है। तो ये तो 5% के नीचे जितने वोट ले रहे हैं पार्टियां, वो तो कभी भी किसी तरह से भी लोकसभा इलेक्शन के लिए अगले फाइट नहीं करनी चाहिए। उनको जब तक पूर्ण रूप से 5% का वोट नहीं मिले देश का, तब तक वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर ही नहीं हो, स्टेट की पार्टी बनी रहे, चलेगा। लेकिन राज्य नेशनल पार्टी क्यों बने? इस तरह का कुछ कानून लाइए, सब मिलके लाइए तो बात बने। अगर ये कांग्रेस को अगर अच्छी राजनीति करनी है तो इस तरह की राजनीति बीजेपी के साथ बैठे। इस देश में इतनी सारी पार्टियां जो पैदा हो रही हैं, उससे देश की विडंबना होगी और ये रिजल्ट आएगा। तो ये नहीं कि 36% बीजेपी को या एनडीए को वोट मिला है। ये बात है कि आपने इतने चॉइस दे दिए कि आदमी वहां पहुंचे तो कंफ्यूज है किस पे मैं ठप्पा मारूं। इस देश के लोग अभी भी इतने पढ़े लिखे नहीं है कि इस तरह की चीज समझ पाए, और हर एक आदमी बोल दे कि भाई मैं भी मोदी साहब के साथ में हूं। रीजनली छोटी छोटी पार्टियां बोले, इंडिपेंडेंट बोले, तो इस तरह का जनादेश आ रहा है। फिर रीजनल पार्टियां इतनी खड़ी हो गई हैं कि हमारा राष्ट्रीय मुद्दा खत्म हो जाता है और रीजनल मुद्दे सामने आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस बार लेकिन वोटर ने बराबर लोकसभा इलेक्शन में बताया कि तुम रीजनल पार्टी हो, तुम्हें बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा। कई लोगों को बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है, इससे बड़ा क्लियर हो गया है। मैं तो सबसे बड़ा बोलता हूँ, एनसीपी जैसी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो स्प्लिट होकर बनी थी, आज शरद पवार जी को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की पार्टी का कोई वजूद है कि नहीं है। इतनी करप्ट, गुंडे और इस तरह के लोगों को उन्होंने अपने यहाँ दिया है। प्रफुल्ल पटेल जैसे नालायक मंत्री उनके साथ थे, इतना करप्ट मंत्री जिसको हमने अभी एक्सपोज किया है पीछे, कि बीएचएल के अंदर बैठ के पहले तो उन्हें एयर इंडिया की बर्बाद की, बीएचएल की बर्बाद की। ऐसा नालायक आदमी जो जेल में जाना चाहिए, वो आज गोंदिया में इलेक्शन लड़ रहा था। अच्छा हुआ लोगों ने हरा दिया इनको, बहुत बढ़िया। उसके अलावा सुशील कुमार शिंदे पूरे देश को बेच दिया, 4,20,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, जो अभी मीडिया के डोमेन में आएगा। $70 बिलियन चाइनीज मशीनरी, और ये आया प्राइवेट सेक्टर के थ्रू है। ये सारे लोगों के साथ कितने पैसे खाए हैं, कितना नुकसान किया देश का। और ये सुशील कुमार शिंदे आखिर में जेल में रहना चाहिए, उसका रिटायरमेंट प्लान जेल में होना चाहिए। अब सबसे पहले मैंडेट में पब्लिक ने हराया उनको, शोलापुर में हार गए। ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट उठेंगे, और जरूर रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील का मुद्दा उठेगा। चाहे हम कितना भी, मोदी साहब अच्छे आदमी है, वो बोलते हैं हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, टारगेट का सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा में जिस तरह की चोरी, और राजस्थान में जिस तरह के लैंड की चोरी, और राजस्थान में तो सोलर आने वाला है करके इतना सारा जमीन उन्होंने हड़प लिया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा का। और रॉबर्ट वाड्रा का दिल्ली में ये तो बहुत बड़े फ्रॉड है, क्रिमिनल आदमी है, और इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन करें। ये अगर प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, उससे हमें क्या लेना देना? वो चाहती है डिवोर्स दे दे इनको, अगर ठीक नहीं लगता तो। लेकिन एज अ पर्सन ही इज अ क्रिमिनल एलिमेंट, ही इज अ लैंड ग्रैबर, और उसके खिलाफ जरूर केस होना चाहिए। इस देश में उसके खिलाफ जरूर केस चलना चाहिए। मोदी साहब नहीं चलाएंगे, लेकिन ऑफिसर जरूर चलाएंगे, जो लोकल ऑफिसर्स हैं। और रॉबर्ट वाड्रा शुड बी इन जेल। जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे, हम इन लोगों को छोड़ के रखेंगे, ये हम इस देश में एग्जाम्पल नहीं देंगे कि इस तरह के क्रिमिनल लोगों को कोई जगह नहीं है राजनीति में। और इनकी हद देखिए, ये गए एक गौतम अडानी को अटैक करने लग गए। गौतम भाई जो है, जो एकदम सीधे प्रकार के बिजनेसमैन है, उन्होंने कच्छ में जो सॉल्ट पैन की जमीन जिसमें कुछ नहीं हो सकता था, उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का पोर्ट खड़ा किया है। उसको उन्होंने उठाया लास्ट में, और क्या निकला? गुजरात में 26-0 रिजल्ट, मैंडेट क्लियर दिया कि तुम्हारी बात नहीं, और पूरे देश ने इसके ऊपर मैंडेट दिया है। तो ये सभी मुद्दे जो उठाए गए, जो मोदी सर के खिलाफ बात हुई, मोदी के गुजरात मॉडल पर अटैक किया गया, जो कि गुजरात मॉडल 100% देश में रेप्लिकेबल मॉडल है, उसको बुरी तरह अटैक किया गया। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें अटैक करने। उनकी इकोनॉमी की अपनी डिग्री अब सोचें कि कहां से ली है, वो सोचें, क्योंकि देश के लोगों ने
एक ऐसा मैंडेट दिया है कि तुम्हारे जो बातें थी उसको पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया, और हमारे जैसे लोगों ने जिन्होंने कॉन्स्टेंटली बोला कि ये गुजरात मॉडल सबसे बढ़िया मॉडल है, ये रेप्लिकेबल है, अडॉप्ट करना पड़ेगा हर जगह, थोड़ा एकदम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, तो ये हुआ। और सबसे अच्छा लगा मुझे यूपी का, यूपी ने जो मैंडेट दिया है, अब यूपी का इतना बड़ा भला हो जाएगा। अगर यूपी के 19 करोड़ लोगों का भला हो सकता है, जो कि 73 सीट्स उन्होंने दी हैं बीजेपी को मैंडेट, मैं आज बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा हमारा रेवोल्यूशन होने वाला है इस देश का। वी आर गोइंग टू बिकम सुपर पावर अगर यूपी एंड बिहार ऊपर आएंगे, क्योंकि ये राज्य, अगर ये राज्य देश के बेस्ट राज्य बन सकते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं हम किसी भी दुनिया की शक्ति के सामने झुकने की जरूरत नहीं है हमें, हम सबसे पावरफुल देश बनेंगे। और ये यूपी एंड बिहार के लोगों का कंट्रीब्यूशन से ही होगा। और इसी प्रकार महाराष्ट्र के लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन करने की बात की है। महाराष्ट्र ने पूर्ण रूप से कांग्रेस एनसीपी को बोलते ना एक तरह से उनको रिटायरमेंट प्लान परमानेंट दे दिया है, 5 ही सीट मिली है, खत्म हो गए, तो अब इनकी राजनीति नहीं चलेगी। हाँ, मोदी सरकार के सामने करप्शन वाला चैलेंज जरूर आएगा, इनको करप्ट अधिकारियों के खिलाफ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसर सोसाइटी में आया हुआ है, उसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में मोदी सरकार के लिए क्या चैलेंजेस सर होंगे? देखिए बहुत सारे, अभी अंतर्राष्ट्रीय तो हैं, लोकल भी है, इनसे बात करनी थी, लोकल वाली बात भी हम कर रहे थे। सार्क के अंदर सबसे पहली बात होगी हमारे संबंध, सार्क को अगर हमें ऊपर लाना है, हमें किसी तरह से 2 प्लान ए प्लान बी। प्लान ए, अगर पाकिस्तान हमारे साथ ठीक से डील करना चाहेगा तो प्लान ए में पाकिस्तान रहेगा सार्क में। प्लान बी माइनस पाकिस्तान, हमको सार्क बनाना पड़ेगा। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजन कॉर्पोरेशन, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसमें हमारे साथ लीडरशिप में बैठे भूटान, छोटा कंट्री है, 7 लाख लोग हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दोस्त। भूटान के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, भूटान की हमारी पॉलिसी और तेज होनी चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार ढीले जा रही थी, सभी प्रोजेक्ट को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही थी। हमें जाना चाहिए, किसी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या चाइनीज को भूटान में आने नहीं देना चाहिए। भूटान के लोगों के साथ मिलके हमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मॉडल बनाना है। भूटान एक तरह से हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा मित्र है और उसको हमको लेके आगे चलना चाहिए। यही चीज हमें नेपाल को बताना पड़ेगा, देखो भूटान का भला हो रहा है, आपका भी होगा। इसमें ऊर्जा सबसे आगे है, क्योंकि हम आज भूटान से तकरीबन 1.5 गीगावाट की बिजली खरीद रहे हैं, 1500 मेगावाट बिजली आज हम खरीद रहे हैं, जो कि 10,000 मेगावाट होने वाली है अगले 5 से 7 साल के अंदर। तो आप अगर ये सोच सकते हैं, वो 10 गीगावाट, वो 20 गीगावाट बन सकती है। और ये चीज, ये वाजपेयी जी के टाइम पे एक प्लान बना था 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। वो 50,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर को उसको डंप कर दिया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, और जाके केवल भूटान की बात करी। भूटान भी वाजपेयी साहब के समय में ये हुआ, और क्रेडिट क्लेम किया इन लोगों ने कि हमने कर लिया। 2008 में इनर्शिया गई थी खुद, और उसने इसको 2020 तक कंप्लीट करने का मैंडेट दिया था। अब ये डिले हो जाएगी, 2025 तक होगी। तो ये सब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वीकनेसेस जो है, इसको डेवलप किया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, तो बर्बाद कर दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मेरी नजर में सबसे घटिया मिनिस्ट्री है, उसको रिवैम्प करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। वो वीक है, हमारी कोई एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं रही है, अब मिनिस्ट्री ऑफ नॉन परफॉर्मेंस हो गई है वो, और वो एक्सटर्नल अफेयर्स को दूसरी तरह देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स हो गई है, दूसरे मंत्रियों को जाने से रोक रही है। तो पहले इस मंत्रालय को ठीक करें, एमईए को। एमईए हैज टू बी रिपेयर्ड, और वो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में, एक तो इंडिया को सुपर पावर तो हो गया है, वो समझना चाहिए, और उस तरह से हमको अपनी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हम कोई ऐसा पावर नहीं है जिसको कोई धक्का दे दे, कोई कुछ बोल दे, कल सुबह अमेरिका कुछ बोल दे, ऐसे नहीं होना है। अमेरिका को हमारे को बराबरी का संबंध रखना है, इक्वल मानना पड़ेगा, एशिया की लीडरशिप माननी पड़ेगी हमारी। हमें अपनी लीडरशिप लेनी है, हमको उनके कहने से नहीं लेनी है, अब हमें छीन लेनी है अपने तरीके से, और हमारी एशियन लीडरशिप और थॉट लीडरशिप लानी पड़ेगी। अब ये हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से इंपोर्ट करके जो बात कर रहे हैं वो चलेगा नहीं। अब वो हम भारतीय जो ब्राउन स्किन ब्लैक स्किन है, ये बात करेगा। इसके बाद हमें अफ्रीकन लोगों से संबंध अच्छा बनाना है, हमें मिडिल ईस्ट से संबंध अच्छे बनाने हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सार्क मॉडल पहले स्ट्रॉन्ग करें। पाकिस्तान अगर इसमें बीच में रोड़ा बन रहा है तो उसको साइड करो और अपना काम करो, उसको बोलो तुमको हमारे साथ बैठना है, साथ करना है तो हम साथ लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड में हमारे खिलाफत करेंगे, और वो साइड में ट्रेड तब होगा, और ट्रेड की बातें हम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन रोज आतंकवाद करेंगे तो ट्रेड नहीं होगा। तो सबसे पहले ट्रेड का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इट इज लाइक सैंक्शंस। तो सार्क को हमें अपने हाथ में लेना है। हम ये बाकी जो छोटे छोटे देश हैं इनको जरा, मालदीव्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है जीएमआर का? एक भारतीय कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके हमको आंख दिखा रहा है, आंख दिखाने नहीं देना चाहिए किसी को इस तरह का।
उनको बताना चाहिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेमार का कॉन्ट्रैक्ट मालदीव वापस रिवाइव करें, नहीं तो मालदीव गवर्नमेंट के साथ हमारे को कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। श्रीलंका में भी हमें एक बात बोलनी है कि ये तमिलों की रोज आप जो कर रहे हैं भत्सना, वो नहीं कर सकते। आज आपको सबको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंडिया को जाके एक राजापक्षा गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, हम जाके देखना चाहते हैं कि जाफना पेनिनसुला में तुमने क्या डेवलपमेंट किया है। अब तो प्रभाकरन खत्म हो गया टेररिस्ट, उसको छोड़िए, अब जो आप कर रहे हैं तमिल्स के साथ क्या कर रहे हैं। नहीं तो वहां से क्या होगा कि रेफ्यूजी हमारे देश में आएंगे और वहां से वो तमिलनाडु में एंटर करेंगे रेफ्यूजी। ये इस तरह की मुसीबत क्रिएट होगी। तो बांग्लादेश में भी यही चल रहा है, तमिलनाडु बॉर्डर में भी यही चलेगा, बाकी जगह में भी यही चलेगा। तो ये चीज के खिलाफ हमें बात करनी है और ये अलाउ नहीं करना है। हमारे जो तबके के लोग हैं, जो हमारे ओरिजिन के लोग हैं, जो वहां रह रहे हैं, चाहे वो किसी भाषा से संबंधित है, किसी धर्म से संबंधित है, उनके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। हिंदूज इन बांग्लादेश शैल बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, हिंदूज इन पाकिस्तान मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, हिंदूज एवरीवेयर मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, क्रिश्चियंस फ्रॉम इंडिया लिविंग एवरीवेयर मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली, मुस्लिम्स हु आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन मस्ट नॉट बी ट्रीटेड सेकंड सिटीजन इन अदर कंट्री। ऐसा नहीं कि हमारे मुसलमान भाई यहां से जाते सऊदी अरेबिया में और अगर कोई उनके साथ कुछ बुरा होता है और उनको जाके जेल कर दिया जाता है, गलत काम कर दिया जाता है, ये नहीं अलाउ होगा। तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जिसकी इंडियन पासपोर्ट है, जिसका ओरिजिन इंडिया का है, उसको हम लोग को डिफेंड करना पड़ेगा। और जो हमारे पासपोर्ट वाले नहीं है, वो जबरदस्ती आके, जैसे आधार कार्ड में 20% बांग्लादेशी आ गए हैं, ये सबसे बड़ा 50,000 करोड़ का नुकसान किया नंदन नीलेकनी। अब वो हार गया इलेक्शन, 7,000 करोड़ का पर्सनल एसेट रखा हुआ आदमी आज कांग्रेस से रिटायरमेंट बेनिफिट लेके आधार कार्ड का चीफ बनता है, उसके बाद उनकी टिकट पे लड़ता है। क्या तमाचा मारा बेंगलोर के लोगों ने, उड़ा दिया उनको भी, खत्म हो गए वो। उनकी राजनीतिक कोई सोच नहीं है, ना राजनीति के लायक है, नालायक है। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति सोचे अपने कलीग को ज्यादा समझाए, भैया तू राजनीति से बाहर दे, तू लायक नहीं है, तू अपने फायदे के लिए गया था और तेरे फायदे के लिए गया, लोगों ने समझ लिया और तेरे को हरा दिया। ये बात है जरूरी। तो ये बातें हमें बाहर लानी है। इस तरह के बिजनेसमैन पॉलिटिशियन के साथ मिलकर जो अपना फायदा उठा रहे हैं, इनको सबसे पहले इनकी कन्नी काटनी पड़ेगी। तो नंदन नीलेकनी मॉडल हैज टू बी डिस्ट्रॉयड इन दिस कंट्री। मैंने सबसे पहले इनको क्रिटिसाइज किया था बहुत साल पहले, लेकिन अब लोगों ने सच्चाई रूप से इनको बता दिया है कि इनकी जगह किधर है। तो इस तरह के लोगों को हमें आने नहीं देना है। और मोदी सरकार के लिए डेंजर है कि इस तरह के लोग आपके अंदर आके खड़े होंगे। को किस तरह की कल्चर कांग्रेस ने खड़ा की है, जो आएंगे, जो आपके सरकार के आसपास घूमते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी उसी तरह से मतलब गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन मुझे पता है कि जिस तरह के पर्सनैलिटी मोदी साहब हैं, इट विल नॉट बी पॉसिबल। जिस तरह की सच्चाई से वो आगे आए हैं, इसलिए वो ये सब होने नहीं देंगे। यही होप है इंडिया का और इसी होप से हमने वोट दिया है कि हमें ये राजशाही, नए राजे नहीं चाहिए। ये जो नए इन्होंने बनाई ना सिस्टम, और ये मिडिल मैन को खत्म करना है। फार्मर का प्रोग्रेस हो, उद्योगपति प्रोग्रेस करे, जॉब क्रिएशन हो इस देश में, अच्छी बातें हो इस देश में, इस देश का भला हो। $2 ट्रिलियन की जो जीडीपी पड़ी है, चाइना आज 7 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन की बात करता है। क्विकली हम चाइना के बराबर पहुंचे अगले 5 साल में कि हम भी 5-6-7 ट्रिलियन डॉलर के करीब की जीडीपी बनाए। और वो पॉसिबल है, बिल्कुल क्षमता है। और हम चाइना से भी बहुत स्ट्रांग है। चाइना की जो जीडीपी बनी है, अपने लोगों को दबा के बनी है। हमारे यहाँ गणतंत्र और लोकतंत्र से हमारी जीडीपी बनी है, इसलिए हमारी जीडीपी दौड़ लगाएगी जबरदस्त। और इस दौड़ में इंडिया जो है जब ग्रोथ करेगा, जब 5 से 10% की ग्रोथ पे आएगा, और मोदी साहब के सरकार के अगले 2-3 साल के अंदर ये आने के आसार है कि 7% 8% ग्रोथ रेट वापस आ जाएगी पूरे देश में। और उनके सारे राज्य जो है, बीजेपी के जो राज्य हैं, चाहे गुजरात हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, 10% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की ग्रोथ रेट पूरे देश में दिखेगी। अब जब ये दिखेगी तो आप समझिए कि विश्व की जो ग्रोथ रेट है उसको हम पलट पाएंगे। अमेरिका इससे बेनिफिट लेगा, यूरोप इससे बेनिफिट लेगा। तो ये हमसे ट्रेड की दोस्ती करें और हमारे खिलाफ ये पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें। ये पाकिस्तान जैसे देश को पहले डिसिप्लिन पिलाएं, ऑर्डर पिलाएं, और अगर ये न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, इनसे न्यूक्लियर वेपन छीन लेने चाहिए। इनके न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय होने चाहिए। इररेस्पॉन्सिबल। कल जो नितिन गडकरी के साथ जो बहस चली है एक हमारे लीडिंग चैनल के अंदर, उसमें हमें न्यूक्लियर धमकी दी गई है। और जफर हिलेली जो है उसने धमकी दी है। उस आदमी को अरेस्ट वारंट निकाल के भारत देश में लाए। वो हमको बोल रहा था हम न्यूक्लियर वेपन है, धमकी दे रहा है कि आपको हम न्यूक्लियर वेपन से समाप्त कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन समाप्त कर सकते हैं। हम तो बोलते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर तुमने न्यूक्लियर के ट्रिगर के आसपास उंगली भी लाई तो तुम्हारा पूरा पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मैप से गायब हो जाएगा। इसके लिए इंडिया जिम्मेदार होगा, याद रखना। अगर तुमने कुछ मस्ती करी तो तुम्हारी पिटाई करने में समय नहीं लगाएंगे हम, इसकी गारंटी है। तो तुम अपने लोगों के बारे में सोचो। तो ये न्यूक्लियर थ्रेट जो रोज इंडिया को देते हैं बंद कर दें, और अपनी जो आतंकवाद है ना वो भी जरा बंद करें। बड़ा डेंजरस
सिचुएशन है ये। और मेरे को मालूम है कि हमारे इस जो रिजल्ट आया है इसके अंदर विघ्न डालने वाला एक देश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री और उनके एस्टेब्लिशमेंट है। इनको ठीक करना है और नवाज शरीफ को इंश्योर करना है कि कहीं उनके ऊपर फिर से कूच नहीं हो जाए, मिलिट्री जनरल आकर उसके ऊपर नहीं बैठे। लास्ट टाइम भी मुशर्रफ ने ही काम किया था, तो इस बार ये काम नहीं चलेगा। इस बार हम पिछले इस लेसन सीख चुके हैं। वाजपेयी साहब को आप लोगों ने धोखा दिया और ये धोखा हम किसी को होने नहीं देंगे फिर से, क्योंकि मोदी साहब को आप धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें क्या करना है और आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन आपने कुछ गलत काम किया तो इसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा इस बार। और इतने आसान नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय पावर का दम नहीं है कोई बीच में आ जाए। आपको हमको रोका नहीं जाएगा। वही होगा जो बांग्लादेश का हुआ, आपके भी कई टुकड़े हो जाएंगे वापस। पाकिस्तान नाम का आइटम नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है ये मैं बोलना चाहता हूँ। इसलिए ये भी हमें देखना है, ये सब हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन बने पड़े हैं। इनको हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन तब बढ़ाएंगे जब आप हमारे रास्ते से आएंगे और आप अपने गलत काम जो आपने अंतर्राष्ट्रीय रूप से टेररिज्म फैलाया हुआ इसको बंद करेंगे। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे जो संबंध है और इवन सार्क रीजन के जो देश है उनके साथ हमारे जो संबंध है, ये तो मैंने इसी विषय में मैंने अभी बात की। मैंने कहा कि संबंध हम भूटान को अपने रिलेशनशिप को सेंटर बना के इसको बड़ा करें, क्योंकि सार्क को खड़ा ही इंडिया और भूटान ने किया हुआ है। एक बहुत भूटान भले ही छोटा देश है लेकिन आपका सबसे अहम संबंधी और दोस्त है, तो भूटान को आप अपना साथी बनाइए और सबको उसके राउंड लाइए। और पाकिस्तान आना चाहे नहीं आना चाहे वो बात की बात है, हम चाहेंगे वो आए। पाकिस्तान शुड बी सेकंड पार्टनर, लेकिन पाकिस्तान सेकंड पार्टनर बन नहीं सकता जब तक आतंकवाद नहीं बनेगा, क्योंकि सार्क मॉडल के अंदर माइनस पाकिस्तान सोचना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसको ठीक से नहीं देखेगा तो हम सार्क में पाकिस्तान की मेंबरशिप को खारिज करें, ये काम इंडिया को करना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। आतंकवाद देश को कभी भी साथ लेना नहीं चाहिए यार, कोई सवाल ही नहीं उठता आतंकवाद देश साथ रहे। तो हमें अपने बायलैटरल संबंध और अलग एक मॉडल बनाइए जिसमें सार्क बनाइए माइनस पाकिस्तान। तो प्लान ए है, पाकिस्तान को समझाया जाए कि तुम आओ और ठीक रहो। अगर नहीं है और अगर वो भारत के साथ ठीक रिश्ते नहीं करता है, लीडर भारत है सार्क का, सबसे बड़ा देश सार्क का भारत है, सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है, तो भारत ही बताएगा कि क्या होगा सार्क में, ये दूसरे नहीं बताएंगे। हाँ, हम जरूर भूटान की बात सुनेंगे, हम जरूर नेपाल की बात बोलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मामले में हम सुन नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के मामले में हम अपनी सोच करेंगे और हम वीटो करेंगे इस इशू को सार्क के अंदर, और हमारे वीटो पावर है। अगर ऐसा नहीं है, कुछ नया गठबंधन बनाइए, सार्क को खत्म करिए। सार्क कुछ नहीं कर पाई है, फिर भूटान को लेकर अपना एक नया मॉडल साउथ एशियन एसोसिएशन नहीं बनाइए, उसको सार्क मत मानिए। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये सब बातें बतानी पड़ेंगी हमें। अब इंडिया को एक अच्छा रोल करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट देनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप, जिससे कि हमारे भी चीन और बाकी लोगों के साथ इक्वल राइट्स रहें। जब तक भारत को उस तरह के राइट्स नहीं दिए जाते, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करे कि हम उससे ज्यादा दोस्ती करेंगे। अब भारत का जो रोल है वो बढ़ने वाला है और ये बढ़ने वाला रोल हमें लेना पड़ेगा, हमें अपने हक लेने पड़ेंगे। भारत अब शांति से रहे, बिल्कुल शांति प्रिय देश है, सब कुछ है, लेकिन अब हमारा वट बढ़ेगा, हमारा वट बढ़ना चाहिए, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेचर बढ़ना है और ये स्टेचर बढ़ने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने आप को वीक नहीं समझे, अमेरिकन हमारे को इक्वल रूप से बात करें। ये नहीं बात करें कि हमारा अमेरिका का एजेंडा है वो अपने घर में रखें, इंडिया का भी एजेंडा है, हम अपने जॉइंट एजेंडा लेके चलेंगे। बराबरी, ओबामा हमारे से बराबरी की बात करें, ये नहीं समझे कि वो हमसे ऊपर है। उनसे ज्यादा शक्तिशाली देश भारत है, अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली देश भारत है। कई भारतवासी ही अमेरिका को चला रहे हैं, ये बात ओबामा को भी मालूम है। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले हमारे लोग हैं, तुम्हारे डॉक्टर हमारे लोग हैं, नासा तुम्हारा हमारे कारण चलता है। इसको बड़े अच्छी रूप से इसको रिस्पेक्ट करना चालू करिए, इंडियन माइंड को रिस्पेक्ट करना चालू करिए। ये नहीं चलेगा अभी, अब वो वाली राजनीति नहीं चलेगी, नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होगी, हमारे नए दोस्त बनेंगे। हमको लगता है कि एंगेला मर्कल जर्मन, दे आर बेटर फ्रेंड्स, हमारे सबसे बड़े दोस्त जर्मन होने चाहिए। इंडिया शुड बी द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ जर्मनी। हमें पुतिन साहब के साथ भी दोस्ती करनी चाहिए, अलेक्जेंडर पुतिन, रशिया पुराना दोस्त है, उससे हमें कोई कटुता नहीं है। अब ये जो सैंक्शन वैंक्शन की राजनीति चल रही है यूक्रेन में, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। आप पुतिन को बातचीत के लिए बुलाइए, आप उनके साथ अच्छे से संबंध बनाने की बात करिए। आप एक तरफा वीटो करने चल दिए यूनाइटेड नेशन में, पता चला तुम्हारी वीटो को उसने वीटो कर दिया, ये भी नहीं चलेगा। तो मैं जरा ये रशियन सिचुएशन, यूक्रेनियन सिचुएशन को अलग तरीके देखता हूँ। हाँ, पुतिन साहब की भी कई गलतियां हैं बीच बीच में, वो गलतियां ठीक है, हर जगह लीडरशिप में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, लेकिन अब आप बुलडोज करना चाहते हैं रशिया को, वो तो नहीं चलेगा ना। रशिया यूरोप में पूरा गैस सप्लाई करता है, यूरोप अपनी गैस सप्लाई कैसे रोके?
ये अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में आता है, इस जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहिए। इसलिए पुतिन के साथ बात करने के लिए मोदी साहब की अच्छी पोजीशन है, ओबामा साहब की नहीं है। अलेक्जेंडर पुतिन से नेगोशिएट केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ओबामा नहीं कर सकते। ओबामा तो उनके खिलाफ सैंक्शन करके उनसे लड़ाई करेंगे। तो ओबामा की राजनीति है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तुम यूनाइटेड स्टेट्स हो तो हम इंडिया है, कल वो हम रशिया है बोल रहा है, तो यही होगा, सारे देश बढ़ जाएंगे और आपके कारण पूरे विश्व में तकलीफ आई है। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस भी यूनाइटेड स्टेट्स लाया है, पूरी मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में इन्वॉल्व है यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी जगह पे आपने अच्छा काम किया है, तो आप अपना आत्म मंथन करिए कि तुम्हारी पॉलिटिक्स किस तरह की है। आपने यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त कर दिया और आप यूएस बेस्ड पॉलिसी पूरी दुनिया में चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगी। इसकी तो फेलियर दिख रही है ना, अभी कहीं नहीं चल पा रही है। और दूसरी, आपने ही चाइना को इतना तोल दिया। चाइना को अगर हम कंट्रोल करना चाहते थे तो पहले ही बताना चाहिए था। जिस तरह की डंपिंग कर रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए थी इनके खिलाफ ट्रेड में। इनके जो माल बुरी तरह से इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के छोटे छोटे कारीगर मर गए इनके कारण। जो गणपति बनाने वाले कारीगर है वो मरे पड़े हैं, जो कपड़े बनाने वाले कारीगर वो पड़े, और जो स्टीम टर्बाइन और बॉयलर बना रहे हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत है। जैसे मैंने बताया 70 बिलियन का हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये सारे ऑर्डर कैंसिल होने चाहिए। मोदी साहब को ये सारे ऑर्डर रिव्यू करके और हमारे प्राइवेट सेक्टर को बुला के बोलना चाहिए, यू कैन नॉट प्लेस दिस ऑर्डर, ये सब रिव्यू होगा, कैंसिल होगा। ये एक ही झटके में मिलिट्री की जगह चाइना को अपने घुटनों पे लाने का एक ही स्टेप है। $70 बिलियन का जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया जाए और सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी को बोला तुम अपने अपने ऑर्डर कैंसिल करो। दैट्स क्लियर। और जब ये कैंसिल करेंगे तब चाइना सुधरेगा। चाइना को मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक झटका दो, तब सुधरेगा। क्योंकि इकोनॉमिक झटके से तब तुमसे दोस्ती याद आती है। पैसा का जब नुकसान होता है तब दोस्ती याद आती है। तो ये मोदी साहब के पास ये सब चैलेंज है, कुछ टफ स्टैंड लेने पड़ेंगे। प्यार मोहब्बत कोका कोला कुछ लेवल तक होगा, लेकिन जहां टफ स्टैंड लेना पड़ेगा, स्पेशली ऑन इश्यूज ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना, इनको थोड़े टफ स्टैंड लेने पड़ेंगे। नेहरू साहब की पंचशील की गलती तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी आज रिसेंटली हमने अरुणाचल पे बोला नहीं है। हमें सीधा बोलना चाहिए अरुणाचल पे हम तुमको कुछ नहीं करने देंगे और हमको मिलिट्री स्टेप्स लेने चाहिए अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। नागालैंड में भी इन्होंने मस्ती करके रखी है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, हमें नॉर्थ ईस्ट को भारत का स्वर्ग बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा उधर डेवलप करना चाहिए। और इस बार काफी अच्छा मैंडेट नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी को मिला है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे सबसे सुंदर राज्य बनेंगे, सबसे सुशील राज्य बनेंगे, सबसे बेस्ट राज्य बनेंगे। और जिस तरह से हम भूटान को डेवलप कर रहे हैं उसी तरह से हम नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करेंगे, ये मेरी इच्छा है। सर मैं एक और सवाल पूछना चाहती थी कि अब कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा? कांग्रेस का फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। इट हैज टू बी माइनस द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी एंड दिस, बिकॉज दे हैव नो लीडरशिप। उनकी लीडरशिप को पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है और पब्लिक ने मैंडेट दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते एक परिवार के रूल व्यक्त किए। कांग्रेस पार्टी जो या तो डिसॉल्व हो जाए, अब तो डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि बनी हुई है, तो अब वो गांधी जी के बोले रास्ते पे जाएंगी और उसमें एक परिवार का ना होके जिस तरह से कैडर बीजेपी का बना हुआ है। बीजेपी में क्या है कि आप किसी भी तबके के आगे एक विचारधारा है, उससे आइए। आप विचारधारा से आप उसको एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो बात की बात है। एक विचारधारा है, एक कंसेप्ट है, एक इंडिया का विजन है, एक तरीका है। ठीक है, हम डिफर कर सकते हैं कुछ मामलों में, वो अलग बात है, लेकिन एक विचारधारा है, एक तरीका है, एक डेवलपमेंट मॉडल है, वो है। उसी तरह कांग्रेस भी एक विचारधारा करके डेवलपमेंट मॉडल है। अगर आप रियली गांधी के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो हमारे गांव के बारे में डेवलपमेंट की बात करें। करप्शन तो तुम्हारी अंदर आए नहीं चाहिए, लेकिन तुम करप्शन की जननी बन गई थी। कांग्रेस वाज करप्शन की जननी इन दिस कंट्री। तो वो कांग्रेस जो है वो नहीं रह सकती। वो कांग्रेस तो कैंसर है, वो देश को मतलब निगल जाएगी। और इसीलिए हमारे देशवासियों ने बोला हम ये निगलने नहीं देंगे, इसलिए इतना बड़ा उन्होंने मैंडेट दिया और उन्होंने इनको रास्ते से हटा दिया। और जो कैंपेन मोदी साहब ने चलाया बहुत बढ़िया कैंपेन था। आपकी बात मोदी सरकार कैंपेन बहुत अच्छा था। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बहुत अच्छा कैंपेन था। हर तरह से देखिए, तो ये केजरीवाल सोच रहे थे वो करेंगे, लेकिन केजरीवाल जी ना तो अपनी भाषा पे कंट्रोल कर पाए और फालतू इल्जाम लगा के उसको प्रूव नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। और अपनी 49 डेज की सरकार में उन्होंने कितने टंटे किए दिल्ली में, तो दिल्ली वालों ने उनको उखाड़ फेंका जो हमने प्रेडिक्ट किया। मैंने तो पहले टीवी में बोला था ये केजरीवाल फालतू बातें कर रहे हैं। केजरीवाल खुद अपने अंदर झांक के देखें, खुद कहीं का करप्ट तो नहीं है वो है? ये नहीं कि पैसे खाए, लेकिन मेंटालिटी से करप्ट तो नहीं है, मेंटली करप्ट है वो। तो उनको मेंटली अपनी करप्शन हटानी पड़ेगी, अपना सफाया करना पड़ेगा, अंतरात्मा को साफ करना पड़ेगा। अगर सही में बोले केजरीवाल बड़े दो टूक बोलते हैं, साफ बोलते हैं, क्या साफ बोलते हैं? साफ बोलने से कुछ नहीं होता, कभी कभी वो बेकार की बात होती है। साफ बोलिए तथ्यों के साथ तो सही होगा। तथ्य है ही नहीं आपके पास।
आप बिजली कैसे 50% कम में दे सकते थे? इस देश में उत्पादन हो रही है क्या बिजली उस प्राइस में? तो आपकी बेवकूफियों वाली बातें हैं, उसके लिए आपको झटका दिया, आपको पावर भी दिया गया, तब समझा गया आप क्या करते हो। आप तो खुद धरने पे बैठ गए, चीफ मिनिस्टर बैठ के। तो इन सबको अंदर समुद्र मंथन करना है 49 डेज में। अगर वो, मैं केजरीवाल जी को बहुत अच्छा मानता, अगर केजरीवाल जी को रियली आना था तो उन्हें चाहिए था कि वो लोकपाल को जो है वो लोकपाल के जैसे एक लोकायुक्त लाते वहां, और उस लोकायुक्त को लाके अगर उनकी कुर्सी हटानी होती तो अपोजिशन उनको गिरा देती, फिर बोलते देखो मैं अच्छा लोकपाल ला रहा था गिराना। ये ना करके, क्योंकि लोकपाल चाहिए नहीं था उनको तो क्या चाहिए था, अच्छा लोकपाल नहीं चाहिए था, उनको तो खाली पॉलिटिक्स करनी थी और अपना फायदा उठाना था, टीवी कवरेज चाहिए था। उसमें बर्बाद हो गए, वो अपने स्कीम में बर्बाद हो गए। तो केजरीवाल जी को भी आम आदमी पार्टी को अगर लाना है, क्योंकि वही पार्टी एक अच्छा अपोजिशन दे सकती है, तो शिष्टाचार के साथ आए, पर्सनल अटैक ना करें। जो उन्होंने पीछे किया मोदी को, उन्होंने पर्सनल अटैक किया, तो ये सारे ना करके मुद्दों पे और डेवलपमेंट पे लाए, अच्छी एंटी करप्शन कैंपेन चलाएं, पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, अपने कैडर को बढ़ाएं। देखिए जरूर केजरीवाल का फॉर्मूला भी चलेगा, और देश को अपोजिशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अच्छी अपोजिशन चाहिए। ये आप दे सकते हैं तो कांग्रेस फिर सफाया हो जाएगा कांग्रेस का। तो बेसिकली कांग्रेस को अब केजरीवाल के या बीजेपी के स्टाइल में आना पड़ेगा, या केजरीवाल को भी उसी रास्ते पर आना। ना केजरीवाल सही है ना कांग्रेस सही है। इस मुद्दे को बड़ी क्लैरिटी आ गई है, रिजल्ट्स हैव शोन दिस क्लैरिटी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, इनको अब मंथन करना पड़ेगा कि आम जनता ने हमारी बातें को किस तरह से बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। और जो बीजेपी कह रही है, मोदी कह रहे हैं, मोदी लीड कर रहे थे उसको, मोदी कह रहे हैं, मोदी की बात है लेकिन बीजेपी की बात है, लेकिन एक लीडरशिप है, लीडरशिप बाकायदा चाहिए, बिना लीडरशिप के कुछ नहीं बनता। लेकिन ये लीडरशिप भी क्या हुआ, आज हमें खुश होना चाहिए कि एक पर्सन इतनी हम्बल बिगिनिंग ऑफ बीइंग चाय डिस्ट्रीब्यूटर एंड चाय वाला in remote Vadanagar in Gujarat can become the Pradhan Mantri of the country or the Prime Minister of the country, and now hand in hand, shoulder in shoulder with the international community and be our national leader of the country. ये हमारी जो सबसे बड़ी गेन है, इसमें हमारे गणतंत्र की शक्ति। हमारे से बड़ा गणतंत्र विश्व में कोई नहीं है, अमेरिका भी पीछे रह गया। ओबामा को जो इलेक्ट किया वो कुछ भी नहीं है, मोदी का इलेक्शन ओबामा से बहुत ऊपर चला गया है। ये जो भारत ने जो इलेक्शन में भारत के जो नागरिकों ने जो दिया है, इन्होंने अमेरिकन नागरिकों को भी एक तरह हम्बल कर दिया है, क्योंकि हमने दुनिया का सबसे पीसफुल, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इलेक्शन गणतंत्र तैयार किया है। इसमें हमने बताया कि हाउ आवर डेमोक्रेसी वर्क्स, और हमने विश्व भर में डेमोक्रेसी के लिए एक मैसेज दिया है कि यही एक तरीका है जिससे आप अपने राजनीतिक इश्यूज को लेके जाके, देश के मुद्दों को लेके जाके आप देश के लिए काम कर सकते हैं। केवल इसी प्रोसेस से आप आगे जा सकते हैं, और कोई प्रोसेस नहीं है। आप मिलिट्रली, कम्युनिज्म से या किसी और मॉडल से आप आगे आएंगे तो आप आगे, सब जगह देखिए तकलीफ है। तो भारत एक देश है जिसने बताया कि थ्रू गणतंत्र, थ्रू बैलेट, थ्रू वोटिंग हम इतना बड़ा डिसीजन देते हैं कि वो डिसीजन अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। तो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 16 तारीख को, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी डेमोक्रेसी भारत ने बनने का रास्ता दिखाया, और इसके बाद हम सुपर पावर, विश्व शक्ति की तरफ बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम बहुत पावरफुल देश बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज से 16 तारीख से 16 मई 2014 बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड चेंज इन द डेस्टिनी ऑफ नेशन टुवर्ड्स बिकमिंग अ सुपर पावर इकोनॉमी। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रिजल्ट। सर, आपके नजर में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है किस प्रकार का स्वरूप लेगी? वो देखिए क्या है कि वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी है। वो पहले तो क्या करते हैं, वो उन्होंने बीच में एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही कि मैं तो कुछ काम करता ही नहीं हूँ, और बिल्कुल सही है। वो एक तरह से मॉनिटर, चीफ एंड सीईओ है। वो एक तरह के ड्रम बीटर है, सब साथ में काम करें, सबको साथ लाएं, मोटिवेट करें, आगे ले जाएं, ये काम उनका है। और यही काम उन्होंने गुजरात में किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को काम करने दिया है, उन्होंने अपने साथियों को काम करने दिया, तभी वो राज्य आगे आया। तो यही मॉडल वो लाएंगे। और एक और बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत ट्रस्ट है आईएएस और जो नॉन आईएएस भी ऑफिसर्स हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर बड़ा अच्छा ट्रस्ट करते हैं। डिसेंट्रलाइज वे में उनके काम में विघ्न नहीं डालते हैं, और कंप्लीटली नॉन करप्ट है। तो ये जो मुद्दे हैं यही देश को आगे लाएंगे, और मोदी जी का यही काम रहेगा। ये तो उनका नेचर नहीं चेंज होगा, जो सिंप्लिसिटी है, सादगी है, और जो उन्होंने प्रोग्रेस करना है, वो उन्होंने अभी भी स्पीच में बोला कि मैं ओहदे को बल नहीं देता। प्रधानमंत्री की कुर्सी के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं देश के, मुझे एक मैंडेट है, मेरे को जिम्मेदारी दी गई है,
और मैं एक पूरे भारत का एक मजदूर हूँ, वर्कर हूँ, और मैं ये काम करता रहूँगा। कर्मवादी हैं, तो अगर वो कर्मवादी रहे जो हैं वो उसको संपूर्ण रूप से करें और अपने रास्ते को भूले नहीं। डेवलपमेंट ही उनका मुद्दा है जिससे वो जीते हैं, डेवलपमेंट ही करें तो इसमें संपूर्ण राष्ट्र इसमें तल्लीन हो जाएगा, उनके साथ जाएगा और देश में जैसे बोला विश्व शक्ति ही बनेगा। धन्यवाद प्रोफेसर अय्यर। ये थे प्रोफेसर अय्यर हमारे साथ जुड़े थे इन्फ्रा टीवी के इस विशेष एपिसोड में, जिसमें हमने प्रोफेसर अय्यर के साथ चर्चा की चुनावों के बारे में, नतीजों के बारे में और देश की अगली रणनीति क्या होगी, नरेंद्र मोदी साहब की अगली रणनीति क्या होगी। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक स्थिर सरकार अगले 5 साल के लिए दी है। उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी अगले 5 सालों में देश को नए मकाम पर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आंखों में बादलों का कजरा। हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज सुंदर सुनहरा। वो धर्म यहाँ पे तो मेहमान नवाजी है, सबका दिलों से होता स्वागतम यहाँ। अनंत है, अपार है, ये प्रांत नहीं ये प्राण है। जय 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 महाराष्ट्र मेरा, देखो प्यारा महाराष्ट्र मेरा। महा है महाराष्ट्र।